Hello dear students, welcome back to our channel. Today we will learn about the different birth control methods in order to control the population of the country. But before beginning with our session, it is my request to you that you haven't subscribed to our channel yet, then please go and click on the subscribe button. Done? Thank you. Let's begin. So let's start with our today's topic, that is birth control. Now why birth control is important and what is birth control? Birth control क्यों important है? Population को बढ़ने से रोकने के लिए. Because we know that what are the problems that a person suffers because of overpopulation. और what is birth control? हमने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया that why birth control is important, and now we will try to understand that what is birth control and what are the different methods that one can control birth. Okay, so first let us try to understand what is birth control. The birth control measures which deliberately means purposely, जानबूझकर, ऐसे methods which prevent fertilization are referred to as contraceptives. ऐसे methods जो जानबूझकर यूज़ किए जाते हैं प्रेगनेंसी रोकने के लिए, उन methods को हम बोलते हैं contraceptive methods. क्या बोलते हैं? Contraceptive methods. Okay, all right. क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करने से? इट हेल्प्स टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज. अब प्रेगनेंसी को मतलब अवॉइड करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. द मदर इज़ नॉट रेडी फिजिकली और इमोशनली और मेंटली, और द फैमिली इज़ नॉट रेडी फाइनेंशियली. देर आर एन नंबर ऑफ रीजंस विच आर देयर टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी. ओके, सो अगर प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है देन वन कैन ऑलवेज प्रेफर कॉन्ट्रासेप्टिव्स ओवर इट. ऑलराइट, एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी इजीली अवेलेबल. अब अगर हमको प्रेगनेंसी रोकना है तो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना चाहिए या कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी अवॉइड हो सके. ऑलराइट, तो जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, जो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव हम अज्यूम करते हैं, उसके कुछ इफेक्ट्स होने चाहिए, मतलब उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जैसे कि इट शुड बी ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट, इन द मेडिकल स्टोर्स, इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली, मतलब वो कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्ट्रासेप्टिव ना हो जिसको इंसान यूज़ करने से पहले 10 बार सोचे. इट शुड बी वेरी इजीली यूजेबल बाय द कंज्यूमर. देन थर्ड, इट शुड बी इफेक्टिव, उसका असर होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ किया है और या आप यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं और उसका कुछ असर ही नहीं हो रहा है. सो इट शुड बी इफेक्टिव एंड इट शुड नॉट शो एनी साइड इफेक्ट, और या तो फिर अगर साइड इफेक्ट हो तो भी इट शुड बी ऑफ मिनिमम लेवल, जिससे कि इंसान के फिजिकल हेल्थ पर ज़्यादा असर ना पड़े. सो इट शुड बी विथ नो और लीस्ट side effects. Okay, so these are the ideal properties for an ideal contraceptive. Now there are two methods for contraceptives. One is temporary method and one is permanent method. Let us have a look that which are the temporary methods to prevent pregnancy and which are the permanent methods. Okay, so these are some of the temporary methods to control birth. Okay, let us have a look that what are these methods. There are total 7 methods which are mentioned in your textbook which are considered as temporary methods to control birth. हमने यहाँ पर 5 लिखे हैं और एक एक करके हम 6th और 7th वाला भी देखेंगे. तो let us start and let us have a look at each one of these temporary methods, that how these methods can be useful in controlling birth. All right. So let's start with the first method. What is the first method? It is natural method, also known as safe method or safe period, and it is also known as rhythm method. अब इसमें क्या बोला गया है हमको? As you can see in the theory, I am just using the textbook so that I don't miss any point while reading out. Okay. So अब हमको इस method में क्या बताया गया है? In the natural method, the principle of avoiding chances of fertilization is used. इस method में हम क्या करते हैं? हम नेचुरली प्रेगनेंसी कैसे अवॉइड की जा सके, हम वो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं. अब इस मेथड में क्या बताया गया है? दैट यूजुअली द सेक्सुअल इंटरकोर्स टेक्स प्लेस 1 week before the menstrual cycle and 1 week after the menstrual cycle. This period is considered as the safe period, क्योंकि हमको पता है कि ओव्यूल जो है वो कब रिलीज होने वाला है? वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे रिलीज होने वाला है. करेक्ट. तो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आने वाले जब होंगे, जब मेंस्ट्रुअम स्टार्ट होने वाला होगा, तो उसके 1 हफ्ते पहले तक और 1 हफ्ते बाद, मतलब पीरियड्स आने के 1 हफ्ते बाद और पीरियड्स आने के 1 हफ्ते पहले तक, these 14 days are considered to be the safe period
बिकॉज कोई ओव्यूल नहीं है, और ओव्यूल नहीं है तो अगर स्पर्म बॉडी के अंदर इंसर्ट हो भी रहा है तो भी उसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए कोई सेल नहीं मिलेगा, एंड एज अ रिजल्ट देयर विल बी नो प्रेगनेंसी। ओके, सो आगे के पॉइंट्स में क्या दिया गया है, अ वीक बिफोर एंड अ वीक आफ्टर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कंसिडर्ड टू बी द सेफ पीरियड, ओके, for sexual intercourse, and in order to avoid pregnancy, this idea is based on the fact that ovulation occurs on which day। ये fact किस basis पर हम बोल रहे हैं, क्योंकि ovulation 14th डे को हो रहा है, हमारा एग जो है वो 14th डे पे रिलीज हो रहा है। ओके, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, लास्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है, इट्स ड्रॉबैक लाइज इन हैविंग ए हाई रेट ऑफ फेलियर। मतलब ये प्रोसेस, ये जो मेथड है, नेचुरल मेथड है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, ये मेथड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं माना जाता है, क्योंकि बहुत बार ओव्यूलेशन का हम मतलब जो पर्सन है, जो वुमन है, उसको अपना टाइम टेबल याद नहीं रहता है, उसका मेंस्ट्रुअल कैलेंडर याद नहीं रहता, और बहुत बार ओव्यूलेशन हो जाता है और उसके बाद अगर इंटरकोर्स करेंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और इसीलिए ये मेथड जो है, ये सेफ पीरियड जो है, ये इतना ज़्यादा सेफ नहीं माना जाता है। इसके अपने खुद के ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन बट ऑब्वियस कि अगर आपको नेचुरली प्रेगनेंसी इग्नोर करना है, देन यू कैन ऑलवेज ट्राई दिस मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी विदाउट यूजिंग एनी आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव। देन द नेक्स्ट मेथड इज कोइटस इंटरप्टस। ये सेकेंड मेथड हमको क्या बताया गया है, कोइटस इंटरप्टस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज विथड्रॉवल। अब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको थ्योरी में दिखाई दे रहा है, इन दिस मेथड द मेल पार्टनर विथड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन। क्या बोला जा रहा है हमको यहाँ पर कि ये जो कोइटस इंटरप्टस का मेथड है, इसमें जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जब कॉप्यूलेशन होता है, तो जो मेल पार्टनर है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते करते जैसे उसको पता चलता है कि अब मेरा सीमेन बॉडी के बाहर इजैक्यूलेट होने वाला है और वजाइना में एंटर करने वाला है, वैसे ही मेल पार्टनर अपना पेनिस वजाइना में से बाहर निकाल लेता है। जब मेल पार्टनर अपना पेनिस वजाइना से बाहर निकाल लेता है तो उसका जो फ्लूइड है, जो सीमेन है, जिसमें स्पर्म्स हैं, वो स्पर्म्स अंदर नहीं जाते हैं, वजाइना के अंदर इंसर्ट नहीं करते हैं, और जिसके वजह से यू कैन कंसिडर कि अगर स्पर्म अंदर नहीं गए हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन इसका खुद का एक ड्रॉबैक है। व्हाट इज़ द ड्रॉबैक, कि जो प्री इजैक्यूलेशन फ्लूइड होता है, मतलब एक्चुअल सीमेन निकलने से पहले जो लिक्विड पार्ट निकलता है मेल के पेनिस में से, कभी कभी उसमें भी स्पर्म्स होते हैं, और अगर वो स्पर्म वजाइना के अंदर चले गए और उन्होंने अगर ओव्यूल को फर्टिलाइज कर दिया, देन ऑब्वियसली द फीमेल विल कंसीव, द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस एंड द फीमेल विल बिकम प्रेग्नेंट। सो दिस मेथड इज ऑल्सो नॉट दैट अश्योर्ड। इस मेथड से भी हमको 100% गारंटी नहीं मिलती है कि सही समय से अगर पीनिस निकाल लिया तो स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि प्री इजैक्यूलेटरी फ्लूइड में भी बहुत बार स्पर्म्स होते हैं और जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन हो जाता है एंड द फीमेल एंड्स अप गेटिंग प्रेग्नेंट। So this is the second method. What is the third method? Lactational amenorrhea. लैक्टेशनल एमेनोरिया मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मतलब ये वो पीरियड है जब मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही है। मतलब समझो अभी अभी अगर मदर की डिलीवरी हुई है, अभी अभी अगर बच्चा पैदा हुआ है, तो मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करती है। ब्रेस्ट फीडिंग मतलब अपना मिल्क फीड करती है बच्चे को, अपने ब्रेस्ट से मिल्क फीड करती है। उस टाइम पे जब तक उसके ब्रेस्ट से कंटिन्यूअस मिल्क निकल रहा है, जब तक मदर अपने बच्चे को कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, तब तक वो मदर मेंस्ट्रुएशन के अंडर नहीं जाएगी, मतलब उसके बॉडी में ब्लीडिंग नहीं होगी। और अगर ब्लीडिंग नहीं होगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, क्योंकि ब्लीडिंग के बाद ओव्यूल रिलीज होता है ऑन 14th डे, इफ़ यू रिमेंबर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, करेक्ट। तो अगर ब्लीडिंग नहीं होगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का चांस ही नहीं उठता है, क्योंकि स्पर्म किसके साथ फर्टिलाइज करेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इसका थ्योरी देखते हैं। थ्योरी में क्या बताया गया है, lactational amenorrhea is also known as absence of menstruation. This method is based on the fact that ovulation does not occur during the period. क्या बोला गया है हमको, इस प्रोसेस में क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा at the period of intense lactation फॉलोइंग पार्चुरेशन। मतलब जब जस्ट अगर अभी अभी बच्चे का डिलीवरी हुआ है, पार्चुरेशन हुआ है, तो मदर के मैमरी ग्लैंड से मिल्क निकल रहा है, और जब तक मिल्क प्रोड्यूस होते रहेगा तब तक मदर को मेंस्ट्रुएशन नहीं होंगे। अब ये फीमेल टू फीमेल वैरी करता है। कुछ फीमेल्स को
प्रेगनेंसी मतलब बच्चा डिलीवर करने के 6 महीने तक मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है, कुछ फीमेल्स को 9 महीने तक ब्लीडिंग नहीं होती है, कुछ फीमेल्स को साल, 1.5 साल, 2 साल तक ब्लीडिंग नहीं होती है। सो इट डिपेंड्स कि मदर की हेल्थ कैसी है और वो कितने टाइम तक अपने बच्चे को कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है। इट डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, जब तक मदर ब्रेस्ट फीडिंग करती रहेगी तब तक उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा और तब तक ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओके, आगे क्या दिया है हमको, देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुल्ली चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। जब तक मदर अपने बच्चे को कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तब तक कंसेप्शन के चांसेस नेग्लिजिबल है, मतलब फर्टिलाइजेशन के चांसेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक ब्लीडिंग नहीं होगी तब तक ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो सेकेंडरी oocyte रिलीज नहीं होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज नहीं होगा तो फिर मदर प्रेग्नेंट नहीं होगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। स्पर्म किसके साथ फर्टिलाइज करेगा? आर यू गेटिंग इट? लास्ट पॉइंट हमको क्या बताया गया है, हाउएवर दिस मेथड ऑल्सो हैज़ हाई चांसेस ऑफ फेलियर। कभी कभी क्या होता है कि वाइल ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो द मदर स्टार्ट्स ब्लीडिंग, मतलब 3 महीने 4 महीने में ही कुछ लेडीज़ में ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द डिलीवरी। 3-4 महीने में ही शी अंडरगोज मेंस्ट्रुएशन और उसका ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला दैट इट डिफर्स फ्रॉम मदर टू मदर। कुछ लेडीज़ में जल्दी मेंस्ट्रुएशन चालू होता है आफ्टर पार्चुरेशन, कुछ लेडीज़ में इट टेक्स टाइम। सो दिस वॉज द थर्ड मेथड। What is fourth method? Fourth method is about chemical means. यहाँ पर हमको क्या बताया गया है that the fourth method is about chemical means. Chemical means में हम क्या use करते हैं? It is a process where a female uses a particular kind of a cream or jelly or any particular kind of lotion which will trap the sperm and it will inhibit the sperm फ्रॉम मूविंग एंड फ्रॉम स्विमिंग अप टिल द यूटेरस। मतलब ये इस मेथड में क्या होता है, थ्योरी देखो, रीड करते हैं। केमिकल मीन्स और ऑल्सो नोन एज स्पर्मीसाइड्स। केमिकल मीन्स को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मीसाइड। स्पर्मीसाइड मतलब क्या होता है? स्पर्मी मीन्स स्पर्म एंड साइड CIDE, साइड मीन्स किलिंग। मतलब ऐसे केमिकल्स यूज करना जिससे स्पर्म्स का मर्डर हो जाए या स्पर्म्स को किल करना बेसिकली। तो ये कैसे होता है, थ्योरी देखो। इन दिस मेथड केमिकल्स लाइक फोम, टैबलेट्स और जेलीज एंड क्रीम्स आर यूज्ड बाय फीमेल पार्टनर। इस मेथड में फीमेल पार्टनर जो है वो कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ करती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले, वो अपने वजाइना में वो केमिकल्स अप्लाई करती है। बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स इफ दीज केमिकल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वजाइना दे अधेयर टू द म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के जस्ट पहले ये केमिकल्स फीमेल के वजाइना में अप्लाई कर दिए जाएं तो वो वजाइना के म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ चिपक जाते हैं। अब अगर वजाइना के म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ ये केमिकल्स चिपक जाएंगे तो जब मेल पेनिस एंटर करेगा और मेल पेनिस से जब स्पर्म्स निकलेंगे, मतलब ऐसा इमेजिन करो दैट दिस इज द वजाइना, इसके ऊपर हमने क्रीम अप्लाई किया है। अब जब मेल पेनिस एंटर करेगा और वो स्पर्म रिलीज करेगा तो ये स्पर्म इन क्रीम्स में ट्रैप हो जाएंगे। क्रीम्स में ट्रैप होने की वजह से उनको फ्लूइड नहीं मिलेगा स्विम करने के लिए और उनकी मूवमेंट ट्रैप हो जाएगी और जिसके वजह से वो वहीं पर मर जाएंगे। आर यू गेटिंग इट? सो दे अधेयर टू द म्यूकस मेम्ब्रेन। इमोबिलाइज मतलब स्पर्म की मूवमेंट को रोक देना। इमोबिलिटी मीन्स नो मूवमेंट। सो दीज क्रीम्स इमोबिलाइज द स्पर्म एंड किल्स द स्पर्म्स। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग द थ्योरी पार्ट? इट में ऑल्सो कॉज एलर्जिक रिएक्शन। इसके वजह से कभी कभी फीमेल पार्टनर या मेल पार्टनर में एलर्जिक रिएक्शन भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो क्रीम्स या टैबलेट्स या जेलीज होती हैं इनका pH अलग अलग हो सकता है। तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर रिप्रोडक्टिव जेनाइटल ऑर्गन का ज़रा सा भी pH ऊपर नीचे हुआ तो इट कैन लीड टू इरिटेशन ऑफ द जेनाइटल, रैशेज आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्किन में चेंजेस हो सकते हैं। सो डिफरेंट साइड इफेक्ट्स आर देयर। ऑलराइट, दिस मेथड ऑल्सो हैज़ हाई चांसेस ऑफ फेलियर, क्योंकि कभी कभी मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जब रिलीज हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे स्पर्म क्रीम में चिपक जाएंगे। कुछ स्पर्म्स हो सकता है यूटेरस तक पहुंच जाएं और अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन हो जाए जिसके वजह से फीमेल कैन गेट प्रेग्नेंट। सो केमिकल मीन्स इज ऑल्सो नॉट 100% गारंटीड। अब तक हम जितने भी मेथड्स पढ़ रहे हैं किसी में भी अश्योरेंस नहीं दी गई है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज मैकेनिकल मीन्स। मैकेनिकल मीन्स में क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स मतलब यहाँ पर हम आर्टिफिशियल डिवाइस या कोई बाहर का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं हमको मैकेनिकल डिवाइस के। फर्स्ट इज कॉन्डम, सेकेंड इज डायफ्राम also known as cervical cup or valves, and the third one is intrauterine devices, IUDs। अब ये तीनों अलग अलग डिवाइसेस हैं और इन तीनों अलग अलग डिवाइसेस का क्या रोल है, लेट अस हैव अ लुक।
पहला क्या है, पहला है कॉन्डम। लेट अस हैव अ लुक कि कॉन्डम के बारे में हमको क्या बताया गया है। ओके, इट इज़ अ थिन रबर शीथ that is used to cover the penis of the male during ejaculation। क्या बोला गया है हमको फर्स्ट पॉइंट में कॉन्डम के, कि एक रबर का मटेरियल होता है, एक रबर का शीट होता है जो मेल पेनिस के ऊपर अप्लाई किया जाता है जस्ट बिफोर द इजैक्यूलेशन, मतलब वाइल द सेक्सुअल पार्टनर्स आर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब मेल और फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो जब मेल पेनिस इरेक्ट हो जाता है उस टाइम पे ये कॉन्डम अप्लाई किया जाता है। ठीक है, रबर का होता है इसीलिए आसानी से स्ट्रेच होकर ये पूरे पेनिस के साइज को अब्जॉर्ब कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। तो अच्छे से ये रबर जब पेनिस के ऊपर एडजस्ट हो जाता है, सो आफ्टर दैट इफ द मेल पार्टनर एंड द फीमेल पार्टनर आर डूइंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उस टाइम पे जब स्पर्म रिलीज होगा तो वो जो रिलीज्ड स्पर्म है वो रबर के अंदर ही रहेगा, वो फीमेल के वजाइना में एंटर नहीं होगा। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ, सो इट लुक्स समवट लाइक दिस। सपोज दिस इज द मेल पेनिस। ओके, अगर हम कॉन्डम ले, कॉन्डम दिखता ऐसे है, इट इज़ अ सर्कुलर रबर लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर मतलब रबर ऐसे सराउंडेड होती है। सो वाइल द मेल पेनिस इरेक्ट्स, आप अगर कॉन्डम को रोल करके पेनिस के ऊपर लगाएंगे तो इट लुक्स लाइक दिस। ये रबर का जो कॉन्डम है वो आपके पेनिस को पूरी तरीके से सराउंड कर लेता है और यहाँ पर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो जब इरेक्शन होगा और जब इजैक्यूलेशन होगा, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाएगा और मेल कंप्लीटली अराउजल फील करेंगे और वो बस अपना जब सीमेन रिलीज करेंगे, तो अब यहाँ पर अगर समझो ये वजाइना में इन्होंने अपना पेनिस डाला हुआ है, तो ये सीमेन जो है, ये पेनिस में से जो सीमेन निकलेगा वो सीमेन वजाइना तक पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि वो सारा सीमेन कहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, कॉन्डम के अंदर। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। थ्योरी में आगे देखते हैं क्या दिया गया है। Okay, so it is a thin rubber sheath that is used to cover the penis of the male during copulation। स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉप्यूटेशन नहीं है, कॉप्यूलेशन है, टी की जगह एल करो स्पेलिंग में। इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ इजैक्यूलेटेड स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सारा स्पर्म, सारा का सारा सीमेन रबर में ही कलेक्ट हो गया तो वजाइना में कुछ नहीं जाएगा, सो इट प्रिवेंट्स द एंट्री। दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन, और इसके वजह से क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। कंसेप्शन मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी। इट इज़ अ सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड एंड इट हैज़ नो साइड इफेक्ट्स। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है क्योंकि इसमें कोई टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे मतलब हाईली कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। ओके, निरोध इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव बाय मेल्स। कॉन्डम को बहुत सारे मेल्स निरोध भी बोलते हैं क्योंकि ये जो है ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है, इससे प्लेजर में भी कुछ असर नहीं पड़ता है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी अवॉइड हो सकती हैं। मतलब जो जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स जैसी डिजीजेस हैं, ये डिजीजेस भी ट्रांसमिट नहीं होंगी अगर कॉन्डम का प्रॉपर यूज़ करेंगे तो। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज निरोध। निरोध का यूज़ करेंगे तो फैमिली छोटी रहेगी, ऐसे गवर्नमेंट स्लोगन है कि निरोध का इस्तेमाल करो और फैमिली को बढ़ने से रोको, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। आई होप दैट यू आर गेटिंग इट। ओके, एंड प्लीज व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स कीप इन माइंड दैट यू आर ए science student, so you have to think everything in a logical manner. Okay, all right. It is easily available and it is given free by the government। हमको क्या बोला गया है आगे कि ये मार्केट में, मेडिकल शॉप्स में बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फ्रीली प्रोवाइड किया जाता है। इट शुड बी प्रॉपरली डिस्कार्डेड आफ्टर एवरी यूज़। यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि आफ्टर एवरी सेक्सुअल इंटरकोर्स, एक बार अगर कॉन्डम यूज़ हो गया तो आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ यूज एंड थ्रो मटेरियल। एक बार यूज़ हो गया तो यू हैव टू थ्रो इट। ओके, condom is also a safeguard against STDs and AIDS। STDs means different sexually transmitted diseases। तो बहुत सारी diseases को भी आप avoid कर सकते हो with proper use of your mechanical method, that is condom। Understood? So this is a very successful method used all over the world। Okay, so this is one of the very great invention you can say to avoid pregnancy and to control population। Now the next comes use of diaphragm, also known as cervical cup or waltz। Let us have a look ये diaphragm क्या होता है। First of all have a look at the diagram of the diaphragm। ये diaphragm कैसे दिख रहा है, it looks like a rubber cap। ओके, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैप। ये सर्वाइकल कैप क्या किया जाता है, ये फीमेल कॉन्डम जैसा काम करता है। इस सर्वाइकल कैप को फीमेल अपने वजाइना से एंटर करती है और सर्विक्स के पास उसको अटका दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। सो समझो, इमेजिन करो दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यहाँ से ये सर्वाइकल कैप एंटर करके ऐसे अटका दिया जाता है। तो अब यहाँ पर आगे आपका सर्विक्स है, तो मेल का पेनिस जब अंदर एंटर करेगा
तो उसका जो भी स्पर्म होगा वो इस कप में इकट्ठा हो जाएगा, वो आगे सर्विक्स तक जाएगा ही नहीं। और हमको पता है कि हमारा ओव्यूल कहाँ पर है, वो हमारे फेलोपियन ट्यूब के पास है। तो स्पर्म को सर्विक्स से होते हुए फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना पड़ेगा, यूटरस तक पहुंचना पड़ेगा, लेकिन हमने स्पर्म को कहाँ रोक दिया है, सर्विक्स के पास ही रोक दिया है, इसीलिए हम उस कप को बोलते हैं सर्वाइकल कप। लेट अस सी आगे थ्योरी में हमको क्या बोला गया है। It is in this method with the help, these devices used by the female are made up of rubber। ये devices किससे बने होते हैं, जैसे कॉन्डम रबर से बना होता है वैसे सर्वाइकल कप भी रबर से बना होता है, बट condoms are used by male and diaphragm और cervical cups are used by female। Okay, they prevent conception by blocking the entry of sperms through the cervix। कॉन्डम कैसे काम करता है, वो सीमेन को वजाइना के अंदर एंटर नहीं करने देता है, वैसे ही सर्वाइकल कप कैसे काम करेगा, वो सीमेन को अपने अंदर कलेक्ट कर लेगा और स्पर्म्स को सर्विक्स के आगे जाने ही नहीं देगा। सो इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ द स्पर्म। द डिवाइस इज इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन। ये डिवाइस हम कहाँ पर इंसर्ट करते हैं, वजाइना के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। जब कॉप्यूलेशन हो रहा होता है तो इसको फोर्सफुली पुश किया जाता है ताकि मेल का पेनिस अंदर अच्छे से इंसर्ट हो सके, प्लेजर में कुछ असर ना पड़े और साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी बनी रहे। डिड यू अंडरस्टैंड? सो दिस वाज अबाउट द फीमेल प्रोटेक्टिव डिवाइस दैट इज डायफ्राम। एंड नाउ कम्स इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। लेट अस हैव अ लुक दैट व्हाट इज दिस। ओके, सो इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस क्या होते हैं? ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो फीमेल के यूटरस के अंदर प्लेस किए जाते हैं। नाउ दीज आर अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड डिवाइसेस, इसीलिए इन डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए हमको क्लिनिकल गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो थ्योरी देखो, थ्योरी में क्या बताया गया है। दीज क्लिनिकल डिवाइसेस आर प्लास्टिक और मेटल ऑब्जेक्ट्स। ये डिवाइसेस कौन से मटेरियल से बने हैं, प्लास्टिक या मेटल। पहले वाले डिवाइसेस रबर से बने थे, डायफ्राम एंड कॉन्डम, एंड इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक और मेटल। अ डॉक्टर और ट्रेन्ड नर्स प्लेसेस द IUDs इनटू द यूटरस। या तो डॉक्टर या तो कोई प्रॉपरली ट्रेन्ड नर्स होनी चाहिए जो फीमेल के यूटरस में ये डिवाइसेस इंसर्ट कर सके। ओके, दीज डिवाइसेस इंक्लूड, ये डिवाइसेस अलग अलग पर्टिकुलर टाइप के होते हैं, मतलब अलग अलग डिवाइसेस के नाम हमको बताए गए हैं। पहला नाम है लिप्स लूप, दूसरा नाम है कॉपर रिलीजिंग IUDs, फॉर एग्जाम्पल कॉपर T दैट इज CUT, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, ऐसे अलग अलग कॉपर लोडिंग डिवाइसेस हैं। एंड द थर्ड वन इज हार्मोन रिलीजिंग IUDs विच आर ऑल्सो नोन एज LNG20 एंड प्रोजेस्टासर्ट। ओके, सो ऐसे अलग अलग डिवाइसेस है, दिखते सब सेम है, इनका मेजर फंक्शन क्या है, तीनों का, लिप्स लूप हो, चाहे कॉपर रिलीजिंग IUD हो, चाहे हार्मोन रिलीजिंग IUD हो, तीनों का फंक्शन क्या है, टू अवॉइड फर्टिलाइजेशन। ओके, कॉप्यूलेशन नॉर्मली होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉर्मली होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पर्म भी अंदर जाएंगे बॉडी के, लेकिन फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल मेथड है बट इट इज़ वेरी यूजफुल, ओके, एंड वेरी इफेक्टिव। अब आगे देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं लिप्स लूप का डायग्राम। देखो लिप्स लूप का डायग्राम देखो, इट इज़ अ डबल S लाइक स्ट्रक्चर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसके थ्योरी में क्या बताया गया है, ध्यान से सुनना। लिप्स लूप इज अ प्लास्टिक डबल S लूप। आपको इसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, इट इज लुकिंग लाइक ए S लूप। इट अट्रैक्ट्स द मैक्रोफाजेस स्टिम्युलेटिंग देम टू अक्यूमुलेट इन द यूटेरिन कैविटी। ये जो लिप लूप है, ये लिप्स लूप क्या करता है, ये मैक्रोफाजेस को अट्रैक्ट करता है। मैक्रोफाजेस मतलब क्या होते हैं, ऐसे सेल्स जो बैक्टीरिया को खाएंगे, ठीक है, या किसी भी दूसरे सेल को खाने वाले सेल हम मैक्रोफाज बोलते हैं। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, मैक्रोफाज कुछ इस तरीके से दिखते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको पैकमैन भी बोलते हैं, ठीक है। मैक्रोफाजेस लुक लाइक दिस, ये हर एक कचरे को, बॉडी के हर एक सेल को खा जाते हैं, ठीक है। तो ये लिप्स लूप क्या करेंगे, ये लिप्स लूप मैक्रोफाज को इकट्ठा करेंगे। मैक्रोफाज को इकट्ठा करके ये क्या करेंगे, आगे देखो थ्योरी में क्या दिया गया है। दीज मैक्रोफाजेस एक्यूमुलेट इन द यूटेरिन कैविटी। मैक्रोफाज इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ये मैक्रोफाजेस क्या करेंगे, ये स्पर्म्स को खाएंगे। फैगोसाइटोसिस करना मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को निगलना। फैगोसाइटोस मीन्स एंगल्फिंग। तो ये जो मैक्रोफाजेस जमा हुए हैं लिप्स लूप के पास, ये मैक्रोफाजेस स्पर्म को एंगल्फ करेंगे, और अगर स्पर्म को ये मैक्रोफाजेस खा जाएंगे तो स्पर्म ओव्यूल तक पहुंचेगा क्या, नहीं। स्पर्म ओव्यूल तक नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या, नहीं। प्रेगनेंसी होगी, नहीं। सो दीज इंक्रीजेज द फैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म्स
विद इन द यूटेरस एंड एक्ट्स एज कॉन्ट्रासेप्टिव। तो यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा ऐसे डेंजरस है इमेजिन करने में कि कोई मैक्रोफाज सारे स्पर्म्स को खा रहा है, बट दिस इज वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी फॉर अ लॉन्गर रन। बहुत ज़्यादा टाइम तक, बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर प्रेगनेंसी रोकनी है तो लिप्स लूप यूटेरस में इम्प्लांट करके ये टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है। ओके, इट एक्ट्स एज कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, ये हो गया लिप्स लूप के बारे में। अब आगे कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के बारे में क्या बताया गया है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म्स। आगे हमको क्या बताया गया है कि जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं, मतलब ऐसे जो कॉपर टी जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जो यूट्रस के बीच में इम्प्लांट किया जाता है, ये कॉपर टीज का क्या काम होता है, या कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज का काम क्या होता है। जो कॉपर निकलता है इन मेटल ऑब्जेक्ट्स में से, जो कॉपर निकलता है वो कॉपर स्पर्म की मोबिलिटी को स्टॉप कर देता है, मतलब स्पर्म की मूवमेंट को फ्रीज कर देता है। और स्पर्म के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जैसे एक्रोसोम के अंदर जो फ्लूइड होता है, वो उन फ्लूइड को भी डीएक्टिवेट कर देता है, ताकि अगर गलती से कुछ स्पर्म्स मोटाइल अगर रह भी गए और वो अगर यूटेरस तक पहुंच भी गए और ओव्यूल तक अगर पहुंच भी गए, तो भी उनके अंदर का केमिकल डीएक्टिवेट हो गया होगा, जिसके वजह से वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज अबाउट कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। हमने लिप्स लूप के बारे में देखा, हमने कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के बारे में देखा। अब देखते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के बारे में। द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज मेक द यूटेरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स। क्या बताया गया है हमको यहाँ पर, ये ऐसे आईयूडीज होती हैं, ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो यूटेरस के अंदर जब आप इनको इम्प्लांट कर दोगे तो ये यूटेरस का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हैं। मतलब यूटेरस को ना एकदम अनसूटेबल क्लाइमेट बना देते हैं, अनसूटेबल एनवायरनमेंट, कि वहाँ पर आपका जाइगोट फर्टिलाइज हो ही नहीं पाएगा, या इम्प्लांटेशन के लिए एकदम इम्प्रॉपर प्लेस है वो, ऐसा हो जाएगा। और वहाँ पर आपका सर्विक्स भी काम नहीं करेगा, मतलब आपका सर्विक्स स्पर्म यूटेरस तक कब पहुँचेगा, जब वो सर्विक्स के अंदर से ट्रैवल करके जाएगा। लेकिन जब सर्विक्स में ट्रैवल करने की जगह नहीं है, उसका म्यूकस एकदम रफ हो चुका है, तो स्पर्म स्विम कैसे करेगा, क्योंकि स्पर्म को स्विम करने के लिए लिक्विड चाहिए, और सर्विक्स का लिक्विड तो पूरा रफ हो चुका है। और वो रफ किसके वजह से हुआ है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के वजह से। इस वजह से पूरा का पूरा यूटेरस जो है वो अनसूटेबल एनवायरनमेंट बना देता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट। ओके, इट डिलेज प्रेगनेंसी फॉर लॉन्गर पीरियड। ये जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं, ये प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा टाइम तक रोकने के लिए हेल्प करती है, जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल। द स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन, ओकेजनल हीमोरेज एंड चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर द ड्रॉबैक्स ऑफ आईयूडीज। लेकिन इन तीनों मेथड्स का, तीनों नहीं, दोनों मेथड्स का, ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी एंड कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, इन दोनों का डिसएडवांटेज क्या है, लिप्स लूप का भी, तीनों का डिसएडवांटेज क्या है कि इनके वजह से, अब लिप्स लूप में हमने देखा कि माइक्रोफाज इकट्ठा हो रहा था तो इन्फेक्शन हो सकता है। फिर हमने देखा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में, वहाँ पर क्या हो रहा था, स्पर्म्स इमोटाइल हो रहे थे, तो स्पर्म्स इकट्ठा होने के वजह से, उनके वजह से भी कुछ इन्फेक्शन हो सकता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के वजह से भी यूटेरस का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, यूटेरस का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो फीमेल को ब्लीडिंग के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा सिस्टम चेंज हो सकता है। सो इसके अपने खुद के ड्रॉबैक्स भी हैं, जितना सक्सेसफुल मेथड ये है उतने ही इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, बट फिर भी इसको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को ज़्यादा टाइम तक रोकने में हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी ये मेथड फेल भी हो जाता है, मतलब किसी फीमेल के अंदर कॉपर टी लगाया हुआ है बट फिर भी वो प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि कॉपर टी का काम क्या है, स्पर्म की स्पीड को रोकना। स्पर्म को टोटली किल नहीं करता है, वो सिर्फ उसकी स्पीड को स्लो करता है। तो कभी कभी स्पर्म ओव्यूल तक पहुँच जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फिर फीमेल ऐसे हैरान हो जाती है कि मैंने तो कॉन्ट्रासेप्टिव लगाया था, फिर मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई। सो इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज ड्रॉबैक ऑफ अ पर्टिकुलर birth control method. Understood? Let's move ahead. Which is the sixth method? Sixth one is physiological और oral devices. ठीक है, अब ये physiological या oral devices में क्या आएंगे, इनमें ऐसे devices यूज होंगे जिनमें फीमेल कोई पिल खाती है या कोई पर्टिकुलर मेडिसिन का वो इंजेक्शन करती है, तो उसको हम बोलते हैं physiological और oral devices. Let us have a look at the theory what is given over here. Let me just rub this thing first. Okay. हाँ, physiological devices are used in the form of tablets and hence they are also called pills. Okay, it is an oral contraceptive. मुंह से ये pills खाने होते हैं, used by the female.
द पिल कंटेन्स प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। इन पिल्स में क्या होता है, इन पिल्स में एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो ओव्यूलेशन होने से ही रोक देता है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा लेकिन ओव्यूल रिलीज नहीं होगा। ओवरीज में से अगर ओव्यूल ही रिलीज नहीं होगा तो स्पर्म किसको फर्टिलाइज करेगा, वो तो ढूंढते रह जाएगा कि सेकेंडरी oocyte कहाँ है। सेकेंडरी oocyte नहीं मिलेगी तो 48 आवर्स में स्पर्म वैसे भी मर जाएगा। आर यू गेटिंग इट? सो दीज पिल्स दे कंटेन progesterone and estrogen combination. The pill contains progesterone and estrogen. They inhibit ovulation. ये chemical combination क्या करते हैं, ovulation को inhibit करते हैं। देखो प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी हार्मोन ओव्यूलेशन के पहले रिलीज हो जाएगा तो बॉडी को क्या लगेगा कि बॉडी प्रेग्नेंट हो गई है, अब मैं नया ओव्यूल क्यों बनाऊं। इस वजह से ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाता है। आर यू गेटिंग इट? मतलब आप जो पिल खाते हो उस पिल में पहले से प्रोजेस्टेरॉन है, वो प्रोजेस्टेरॉन बॉडी के सेल्स को क्या बोलेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब अगर बॉडी प्रेग्नेंट है तो हमको पता है कि अगर हमारी बॉडी प्रेग्नेंट है तो नया ओव्यूल रिलीज नहीं होगा। नया ओव्यूल रिलीज नहीं होगा तो स्पर्म किसको फर्टिलाइज करेगा। आर यू गेटिंग इट? तो हम बॉडी को कंफ्यूज कर देते हैं प्रोजेस्टेरॉन का पिल खाकर। ओके, so they inhibit ovulation and hence no eggs are released from the ovary of a female using this pill and thus conception cannot occur. इसके वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी। They also alter the quality of cervical mucus. लेकिन इन पिल्स के वजह से क्या होता है, सर्विक्स में जो म्यूकस है उसकी क्वालिटी में भी थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं। Alter means change. टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, मतलब हो सकता है कि म्यूकस की कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा चेंज हो जाए, म्यूकस रफ हो जाए या उसके केमिकल चेंजेस हो जाए, पीएच में चेंजेस हो जाए, जिसके वजह से स्पर्म यूटरस तक नहीं पहुंच पाता है। सो दीज आर द टू चेंजेस दैट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ अ पिल। ओके, द पिल हैव साइड इफेक्ट्स। अब इस पिल के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि नौशिया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होना, वेट गेन, वजन बढ़ना, टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट एकदम से पेनफुल और एकदम स्टिफ हो जाते हैं, एकदम ऐसे कड़क कड़क हो जाते हैं, एंड स्लाइट ब्लड लॉस बिटवीन मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। और मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के टाइम पे थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होना विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि एंडोमेट्रियम अगर पूरी तरीके से नहीं निकलेगा तो न्यू एंडोमेट्रियम लेयर नहीं आएगी। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ दीज पिल्स। द पिल सहेली इज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स। ओके, सहेली करके गवर्नमेंट ने दवा निकाली है, पिल निकाली है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इट इज़ नॉन स्टेरॉइडल। ये सहेली पिल कैसा है, नॉन स्टेरॉइडल, मतलब इसमें कोई भी केमिकल स्टेरॉइड्स नहीं है, डेरिवेटिव्स नहीं है। सहेली इज टू बी टेकन वंस इन अ वीक। ये सहेली पिल कब लेना होता है, हर हफ्ते में एक बार, चाहे सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चाहे ना हो, हर हफ्ते में एक बार लेना होता है ताकि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रॉपरली मेंटेन रख सके। अगर आप ऐसा सोचोगे कि आज सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो आज मैं ये पिल ले लेती हूँ जिसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, तो ऐसा नहीं है। एवरी वंस इन अ वीक यू हैव टू टेक दिस पिल if you want to prevent the pregnancy for a longer period of time. Okay, these pills are sponsored by the government. You can find these pills in any of the government hospitals or gynecologist clinics in free. Okay, for free. अब आपको एक बॉक्स दिया गया है ऑलवेज रिमेंबर करके। सहेली इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ नेशनल फैमिली प्रोग्राम एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इन इंडिया। मतलब ये जो पिल है ये ऑल ओवर द कंट्री में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, क्योंकि इंडिया बीइंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फीमेल अपनी तरफ से कोई स्टेप उठाए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। बहुत बार क्या होता है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी में मेल्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चे को नहीं मारेंगे, या हम कॉन्डम यूज़ नहीं करेंगे, या तुम सर्वाइकल कप यूज़ नहीं करोगे, क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चा भगवान की देन होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पर हम ये फैक्ट इग्नोर नहीं कर सकते कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतने ज़्यादा आपके ही बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी कम होंगी, उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ कम हो जाएंगी, और पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डेवलपमेंट फैमिली की बिल्कुल नहीं होगी। तो इस वजह से फीमेल्स को सपोर्ट करने के लिए उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है दैट दे कैन फाइंड दिस pills, this Saheli tablet for free in any government organizations. Okay, all right. Now comes other contraceptives. Other contraceptives में क्या होते हैं? Let us read. The birth control implant is a contraceptive used by the female. इसमें एक मैच स्टिक जैसा छोटा सा स्टिक होता है, जैसे हमने कॉपर टी देखा ना, मेटल का होता है, वैसे इसमें एक छोटा सा स्टिक होता है। It is a इम्प्लांट यूज्ड बाय द फीमेल। ये स्टिक को क्या करते हैं, देखो आपको दिखाया गया है यहाँ पे डायग्राम में, देखो दिखाया गया है। इस स्टिक को क्या करते हैं, इट इज़ अ टाइनी थिन रॉड अबाउट द साइज ऑफ अ मैच स्टिक। इट इज़ इम्प्लांटेड अंडर द स्क्रीन ऑफ द अपर आर्म। फीमेल के अपर आर्म के पास इस स्टिक को इम्प्लांट किया जाता है। ये स्टिक क्या करती है, दे कंटेन प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, और उसके वजह से क्या होगा, हार्मोनल चेंजेस होंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। देयर मोड ऑफ एक्शन इज
सिमिलर टू दैट ऑफ द पिल्स. जैसे पिल्स ने कैसे ओव्यूलेशन रोक दिया, वैसे इस स्टिक का भी काम क्या होता है, ओव्यूलेशन को रोक देना. दे प्रिवेंट प्रेगनेंसी फॉर 3 to 4 years. ये जो स्टिक है ये कितने टाइम तक प्रेगनेंसी को रोक सकती है? इट कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 3 to 4 years. So I hope that you understood everything that we discussed here. Okay. All right, dear students. So I hope that today's lecture, today's discussion was pretty much helpful to you. आपको अच्छे से समझ में आया हो, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है. अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, then feel free to ask your doubts in our comment section. But before asking, make sure that you read your textbook once, okay, because everything is given in your textbook. And if you find any difficulty in understanding any particular concept, then we will be helpful and we will be happy to help you in clearing your doubts. Okay, if you liked our video, today's video especially, then please click on the like button. Do not forget to share your views in our comment section, and please share these videos with as many people and your friends as much possible. Okay, let's spread some awareness amongst the population of the country. And if you haven't subscribed to our channel yet, then please click on the subscribe button. Thank you. Stay tuned. See you soon in the next session. Take care.